Good morning, dear students. Today we are going to start next chapter, chapter number 23, incomplete records. So students, this is your last chapter. This is the part 1. So students, what is the meaning of incomplete records? First of all, so in this chapter we will study introduction part of the incomplete records. Secondly, we will learn features of incomplete records. Okay, then third topic is the methods. Okay. And first method is statement of affair, and second is preparing trading and profit and loss account and balance sheet. And statement of affairs, this is in your syllabus, and second method, this is the deleted from your syllabus. Okay, the second method जो है वो CBSE की तरफ से deleted है. So first of all, we will study introduction part. Okay, students. So accounting records have been prepared according to double entry, जो कि हम principles use कर रहे हैं. अभी तक आपने देखा कि हमने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं वो सारे डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड थे. ओके, सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री आर नोन एज इनकम्प्लीट. जो अकाउंटिंग हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किए बिना बनाएंगे मींस उन अकाउंट्स को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. सो यू कैन से कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच fall short of complete double entry are called incomplete records. Okay, short of complete double, यानी कि यहाँ पर हमें completely double entry system को follow नहीं करना है. Sometimes it is also termed as single entry system. इसलिए इसको हम single entry system भी बोलते हैं, जो कि double entry system को follow नहीं कर रहे हैं properly. So that's why it is called single entry system. But it is not proper to describe the system as single entry. हम इसको proper single भी नहीं बोल पा रहे. Because there is no such system of maintaining accounting records. Okay, incomplete record refers to maintaining of only those records which are essential. यहाँ पर सिर्फ वही हमने records बनाए हैं जो जरूरी है. So in other words, you can see कि under the incomplete records, some of the subsidiary books and some ledger accounts are not maintained, which are otherwise the essential under the double entry system. जैसे कि हम इसमें बनाते हैं journal, subsidiary, ledger, वो सब इसमें मेंटेन हमें नहीं करना है. तो हमें सिर्फ इसमें एसेंशियल्स को ही लेना है. जैसे कि एसेंशियल में हमारे पास जो मेन फाइनल अकाउंट्स जैसे आप प्रिपेयर करते हैं, तो हम इसमें डायरेक्टली जो है वो फाइनल अकाउंट्स इसको प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, यू कैन डू एनी वन डेफिनेशन. आपकी बुक में 2 डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कार्टर एंड अकॉर्डिंग टू कोहलर. यू कैन डू एनी वन. देन मेन फीचर्स ऑफ फीचर, सेकंड पार्ट इज द फीचर्स. Features of incomplete records. First point is maintenance of personal account only. So students, usually हम लोग 3 types के accounts को देख सकते हैं, real, nominal and personal. But in incomplete records, only personal accounts are prepared in the books. Okay, and real and nominal accounts are ignored. Second thing, maintenance of cash book. A cash book is maintained under this system, which usually mix up business as well as private transactions of the proprietor. दोनों वो अपनी पर्सनल और अपनी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इकट्ठा इसमें ऐड कर सकता है. थर्ड पॉइंट इज डिपेंडेंस ऑफ ऑन ओरिजिनल वाउचर. यहाँ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, सो इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वन हैज टू डिपेंड ऑन ओरिजिनल वाउचर्स. फॉर एग्जांपल, अगर हम करें तो द फिगर ऑफ द परचेज एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड इज ascertained by totaling the original invoices. हम इसमें चेक करेंगे कि जितने भी हमारे पास इनवॉइसेस रिसीव्ड हुए हैं फ्रॉम द सप्लायर, हम सिर्फ उसी का टोटल करेंगे यहाँ पर. ठीक है, ताकि हमारे पास कंप्लीट परचेज हो जाए. जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे पास इनवॉइसेस हमें मिलते हैं, तो हम उन कंप्लीट इनवॉइसेस का टोटल चेक करेंगे. सिमिलरली, अगर फिगर ऑफ सेल को सर्टेन करना है बाय लुकिंग द टोटल ऑफ कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन इश्यूड टू द कस्टमर्स. जो इनवॉइसेस हमने उनको इश्यू करे हैं, फिर हम उनकी टोटलिंग करेंगे. ठीक है. So fourth point is the lack of uniformity. The books maintained under this system may differ from firm to firm. हर कोई फर्म अलग-अलग अपने हिसाब से बनाती है. Because the system is only an adjustment of double entry system according to the actual needs and convenience of the business house. अगर जरूरत है तभी हम यहाँ पर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की. अदरवाइज ये सबसे अपने अपनी मेंटेनेंस है, हर कोई अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन करता है. Then fifth point is the suitability. Books according to this system can be maintained only by a sole trader or partnership firm. यहाँ पर मतलब जो कंपनीज हैं उनके लिए ये नहीं है. Limited companies cannot keep their books on this system because of legal provision. क्योंकि लीगली
टाइम पे डबल एंट्री सिस्टम को ही यूज करना है। लेकिन यहाँ पर जो सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फर्म है, आपके यहाँ छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं, सिर्फ वही ये मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। Since the record of all nominal and real account is not maintained under this system, आपको मैंने जैसे कि बताया, तो फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इजीली। यहाँ पर बहुत इजी नहीं हो पाएगा कि फाइनल अकाउंट्स हम इजीली प्रिपेयर कर लें। तो फाइनल अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर कन्वर्टिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो भी करनी है उसको हमें डबल एंट्री रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करना है, एंड आफ्टर असर्टेनिंग द मिसिंग फिगर्स, जो भी हमारी मिसिंग फिगर है उनको हम यहाँ पर फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करके निकालना है। Even then, the figure of assets and liabilities will be based merely on estimates. यहाँ पर कुछ estimates के ऊपर भी based है. Because of this reason, the statement of asset and liabilities prepared under the system is termed as, इसी के लिए हम इसको बोलते हैं statement of affairs instead of balance sheet. इसलिए हम जब ये asset और liabilities को ascertain करेंगे, तो otherwise हम double entry system में तो balance sheet use करते हैं, उसी में हम अपनी assets और liabilities को use करते हैं, but यहाँ पर जो आपका name रहेगा balance sheet की जगह पर वो रहेगा statement of affairs. We will use the name statement of affairs instead of balance sheet. Okay, तो ये main आपका इसमें जो ये बनेगा। Then इसके जो uses हैं और reasons for keeping incomplete records, क्या reason है इसका incomplete records को जो हम maintain करते हैं? First of all, ये एक simple method है, you know very well, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ledger journal इतना काम नहीं है। Second thing, less expensive, क्योंकि इसमें कैश की सिर्फ बनानी है। और थर्ड पॉइंट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। छोटे छोटे कंसर्न्स के लिए जो है वो सुटेबल है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए नहीं होती। इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, इसमें बहुत जल्दी से इजीली प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट कर पाते हैं। फ्लेक्सिबल मेथड है, तो स्ट्रिक्टली रूल्स नहीं है जिनको हमें फॉलो करना है, तो यू कैन चेंज इजीली चेंज and adjusted according to the need. जैसे हमें जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन कुछ लिमिटेशंस भी है इस मेथड की। फर्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर जर्नल लेजर वगैरह नहीं है, तो दैट्स व्हाई ट्रायल बैलेंस पॉसिबल नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको पता है बाद में फाइनल अकाउंट्स बनाने में भी दिक्कत आ सकती है। थर्ड इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक सिस्टम। अनसाइंटिफिक सिस्टम इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ये हम कह सकते हैं कि इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। अगर कोई एक एडजस्टमेंट है तो हम वो कहीं ना कहीं डेबिट और दूसरी जगह दूसरे अकाउंट में कहीं जगह वो क्रेडिट होती है, बट इन दिस सिस्टम ऐसा जो नहीं हो रहा है, तो नो सच रूल्स आर फॉलोड इन दिस सिस्टम। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज द अनसाइंटिफिक सिस्टम। एंड थर्ड पॉइंट इज ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी असर्टेन। यहाँ पर हम जो भी प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे हैं तो श्योरिटी नहीं रहती है कि वो जो निकले हैं प्रॉफिट्स या लॉसेस जो है वो बिल्कुल श्योर है। तो मे बी वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होगा वो। देन डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ऑब्वियसली जब स्टार्टिंग में कोई हमारे पास रियल अकाउंट नहीं हम प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉमिनल नहीं कर रहे, बैलेंस शीट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएंगी, है ना। सो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पर हम इसीलिए बैलेंस शीट ना बना करके क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओके, एंड no control on assets, ये भी इसकी एक limitation है। So since real account are not maintained, it is not possible to keep full control on the asset. asset पे भी पूरा control नहीं रहेगा। And difficulty in comparative study, proper valuation of assets not possible at the time of the sale of business. हमें properly उसकी जो value है वो नहीं पता चलती है जब business को sale करते हैं, ठीक है। और internal check not possible. So these were the limitations. Okay. Next topic is the difference between double entry system and incomplete records. But according to this is a syllabus. But I think आपको ये कर लेना चाहिए। At least आपको दोनों का difference clear होना चाहिए कि what is the main differences between double entry system and incomplete records. आप इसको एक बार read शुरू करें, ठीक है। Next main topic is methods. Methods, we have two methods: statement of affairs and preparing trading and profit and loss account and balance sheet. तो यहाँ पर हमारे पास टू मेथड्स हैं। जो ये सेकंड मेथड है, दैट मेथड वी विल यूज टू ऑल एडजस्टमेंट्स या ऑल यू कैन से कि आइटम्स वी कैन कन्वर्ट इनटू डबल एंट्री मेथड। मतलब यहाँ पर हम इसको डबल एंट्री मेथड से कन्वर्ट करते हैं, बट दिस मेथड इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस।
ओके, तो हम सिर्फ फर्स्ट मेथड इसमें अब करेंगे प्रैक्टिकली. फर्स्ट मेथड इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. So according to this method, the profits are ascertained by comparing the capital at the end and capital at the beginning. यहाँ मैंने दो बातें कही हैं. कंपेयर किस चीज को करना है? जो आपकी स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल रहती है 1 अप्रैल को, फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल को, और जो उस पूरे ड्यूरिंग द ईयर आप यूज करते हो जिसमें भी एड लेस करने के बाद जो लास्ट में भी क्लोजिंग कैपिटल, उन दोनों को हम यहाँ पर कंपेयर करना है. ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड में कैपिटल है. इफ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज मोर देन द एट द बिगिनिंग, अगर जो क्लोजिंग कैपिटल है वो मोर देन है इसके कंपैरेटिवली ओपनिंग के, तो द डिफरेंसेस जो आएंगे इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट. तो हम मान के चलेंगे कि प्रॉफिट है. और इफ ऑन द अदर हैंड इफ द कैपिटल एट द एंड इज लेस देन एट द बिगिनिंग, देन डिफरेंस इज द टर्म्ड एज लॉस. क्लियर? यहाँ हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? ओनली कैपिटल्स. As such, in order to ascertain profit according to this method, it is necessary to calculate the capital at the beginning of the year and also at the end of the year. अगर अब हम इस मेथड से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो चीजें चाहिए. वो क्या? एक तो ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल. मींस कैपिटल एट द बिगिनिंग एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. ये अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. तो कैपिटल एट द बिगिनिंग इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग एन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. उसके साथ उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इसमें ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो जिससे कि हम यहाँ पर अगर सपोज आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल. तो कैपिटल एट द एंड इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. अगर सपोज आपके पास कैपिटल जो है क्लोजिंग के गिवन नहीं है, ओके, देन यू विल प्रिपेयर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. तरीका सेम है, मेथड सेम है, इसकी वो चीज नहीं है. सिर्फ आपको ओपनिंग बैलेंसेस यूज करने हैं ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए और क्लोजिंग बैलेंसेस यूज करने हैं क्लोजिंग कैपिटल को यूज करने के लिए. एंड अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सिमिलर टू दो नॉट द सेम, मतलब एग्जैक्टली नहीं मैं कह रही हूँ, बट एज ए बैलेंस शीट. दिस इज द सिमिलर टू बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर. जैसे ये मैंने अभी आपके सामने फॉर्मेट बनाया है, इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए साथ साथ मेरे कर दिया. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट जो भी डेट यहाँ पर आपकी आएगी 31 मार्च 2000 जो भी ईयर है आपका. देन वी हैव 4 कॉलम्स. in left side this is the liability side, okay, amount. Then right side is the asset side, amount, okay. And items भी वही है same. बैंक overdraft, bills payable, creditors, outstanding expenses, received in advance, and कैपिटल. यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए ये बना रहे हैं. ठीक है, एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो भी आ गया आपके पास आइटम सर्विस, रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, okay, and fixed assets के में furniture, plant and machinery, जो भी आपके पास गिवन है आप इसका टोटल करो, उसमें से जो भी लायबिलिटीज गिवन है वो माइनस करके यू कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. ये आइटम आपके पास निकल के आएगी, यहाँ से आप निकाल सकते हो. और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोनों के लिए यूज करना है आपने, ओपनिंग के लिए भी और क्लोजिंग के लिए भी सेम फॉर्मेट आपके लिए. तो बस आपको डिफरेंस ये रहेगा कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होगा उसके आप डेट यहाँ पर ओपनिंग की लिखेंगे, तो 1 अप्रैल जो भी आपकी डेट है, और आप जो यहाँ पर बैलेंसेस यूज करेंगे सारे ये सब ओपनिंग होंगे आपके पास गिवन होंगे क्वेश्चन में. और जब आप इसकी क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ये वाली, देन यू विल शो द डेट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च जो भी आपका ईयर है. एंड आप जो यहाँ पर बैलेंसेस यूज करोगे, अमाउंट्स यूज करोगे, वो आपके सारे क्लोजिंग की होंगी और ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, और उसको यूज करके जब आपकी कैपिटल कैलकुलेट होगी तो इट विल बी क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? ठीक है, ये डिफरेंस भी आपको खुद ही करना है, एक बार आप देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देन स्टेप्स, आपको मैं यहाँ पर स्टेप्स क्लियर कर दूं कि हाउ वी कैन सर्टेन द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट इसमें कैसे हम इसमें सर्टेन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कैन बी स्टेटेड। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जैसे हमने ये कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करेंगे एट द बिगिनिंग। इससे हमें हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पर? कैपिटल एट द स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यहाँ से बिगिनिंग निकल आएगी। देन सेम ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वी विल प्रिपेयर फॉर टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल, है ना। क्लोजिंग कैपिटल के लिए भी हमें सेम निकालना है, यानी कि आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेंगे टू, एक ओपनिंग के लिए और एक क्लोजिंग के लिए, और बनेगा सेम, फॉर्मेट सेम है। तो यहाँ पहले स्टेप में आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है एंड सेकंड स्टेप यू विल कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। ओके, स्टेप 3 क्या है? एडजस्ट द क्लोजिंग कैपिटल बाय एडिंग इनटू द ड्राइंग्स made by proprietor during the year and deduction there from the additional capital introduced during the year। अब जब जो भी आपके पास ये आ जाएगा, दोनों अकाउंट्स आपके पास, अकाउंट्स नहीं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दोनों प्रिपेयर होने के बाद, यू विल प्रिपेयर एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और एंड लॉस। ठीक है, मैं आपके साथ प्रिपेयर कर देती हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये भी आपका प्रिपेयर होगा फॉर द ईयर एंड डेट मेंशन कर दो यहाँ पर। सबसे पहले आपने लेनी है यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड, ठीक है, एक ही कॉलम लेना है, ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स जो भी इसमें पर्सनल पर्पस के लिए, लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर इसमें कुछ भी नहीं कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस, एंड एट द लास्ट में आप इस पे लेस करेंगे कैपिटल एट द बिगिनिंग। और ये 3 स्टेप्स करने के बाद आपके पास जो आएगा दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। अगर ये नेगेटिव होगा, यानी कि अगर ये नेगेटिव ही होगा सपोज ये लॉस है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये प्रॉफिट। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये स्टेप्स हम यूज करेंगे। ओके, नाउ let's start illustration number 1, page number 23.6. Open page number 23.6, illustration number 1, practical portion of this chapter. Illustration number 1, Anurag keeps incomplete records of his business. He gives you the following information. आपके पास कुछ information given है, अनुराग की incomplete records का business है, तो capital at the beginning of the year, capital at the end of the year. In this question, these items are already given. तो अब आपको there is no need to prepare the statement of affairs in this question, क्योंकि यहाँ पर already given है सारा कुछ जो हमें यहाँ पर चाहिए आपके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एट द एंड चाहिए, कैपिटल एट द बिगिनिंग चाहिए ना, तो ये चीजें भी गिवन है। और अगर सपोज ये पहले ही गिवन है फिर तो आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने के लिए नीड नहीं है। ये आपको तभी प्रिपेयर करना है जब ये कैपिटल्स, इन दोनों में से कोई भी कैपिटल मिसिंग है। In this question already given है capital at the beginning and capital at the end, so you will use directly these items to ascertain profit during the year. Okay, next drawings made during the year, 2,50,000, additional capital introduced during the year 30,000. You are required to calculate profit or loss made during the year. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम इसी में फिल कर देते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है इसका फॉर्मेट।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए यहाँ पर, कैपिटल एट द एंड जो गिवन है 6,20,000 मेंशन करते हैं यहाँ पर 6,20,000 दिस इज द अमाउंट इन रुपीज। ओके देन ऐड करेंगे ड्राइंग्स 2,50,000 गिवन है क्वेश्चन में 2,50,000 ऐड कर लो 0 0 0 0 5 plus 2 7 6 plus 2 8 this is 8,70,000 additional capital given है क्वेश्चन में 30,000 you will add this item add है additional capital ये ऐड करके आएगा सॉरी लेस ठीक है लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल माइनस 0 0 0 7 minus 3 4 and 8,40,000 एडिशनल कैपिटल आपने माइनस करना है देन माइनस करेंगे कैपिटल एट द बिगिनिंग दैट इज द 8 लाख अगर पॉजिटिव आ रहा है 40,000 इट मींस दिस इज द प्रॉफिट अगर सपोज यहाँ कैपिटल एट द बिगिनिंग जो है वो ग्रेटर होता कंपैरेटिव टू दिस अमाउंट तो फिर ये क्या बनता लॉस ठीक है तो अभी ये क्या है प्रॉफिट है 40,000 प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर ओके इलस्ट्रेशन नंबर 2 Kavish who keeps his books on single entry system started his business on 1st April 2016 with a capital of rupees 3 lakh यहाँ भी आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है ओपनिंग कैपिटल at the end of the year that is on 31st March 2017 the position of the assets and liabilities was as under तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास कुछ ओपनिंग तो गिवन है लेकिन एट द एंड की आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो यू विल कैलकुलेट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करोगे अब यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है ठीक है इंफॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज अ कैश एट बैंक फर्नीचर मशीनरी डेटर्स स्टॉक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ओके तो यूजिंग दीज आइटम्स यू विल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इस तरह से आपको ये प्रिपेयर करना है जरूरी नहीं है सारे आइटम्स आपके पास गिवन होंगे आपके पास जो आइटम गिवन है आपने उन्हीं को यूज करना है और आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करके क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से कैलकुलेट कर लेना During the year, he introduced 40,000 as additional capital and withdrew with 15,000 for his personal use. Drawings भी given है और additional capital भी given है. Prepare a statement of profits and loss to calculate profit or loss for the year ended on 31st March 2017. Illustration number 2 करते हैं. ये first illustration आपकी हो गई है done. Illustration number 2. First of all, you will prepare statement of affairs. आपके पास आइटम given है कैश एट बैंक 25,000. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपको यहाँ पर प्रिपेयर करना है. कौन सी क्लोजिंग का है तो 31st March 2007. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, the board is not visible. Now check please. अभी विजिबल है देखो. Ma'am, it is not visible clearly. ओके चलो मैं साथ साथ बोल दे रही हूँ आप नोट करते जाओ. एसेट साइड में फर्स्ट आइटम है कैश 25,000 लिखते जाओ सर सर. फर्नीचर गिवन है 2 लाख सॉरी हाँ जी 2,20,000. दिस इज द फर्नीचर. थर्ड मशीनरी है 75,000. मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 75,000. मे बी नेटवर्क इशू होगा बेटा तो आप जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप नोट करते जाओ नोटबुक पे. डेटर्स 40,000. स्टॉक आपके पास गिवन है 60,000. क्रेडिटर्स गिवन है 70,000. क्रेडिटर्स आपकी लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड में आएंगे. बिल्स पेबल 20,000. ये भी आपकी लायबिलिटी. नाउ यू विल कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल. कैसे करेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करो एसेट्स को, टोटल कर लो इसका, ये आपके पास हो जाएगा 4,20,000. नाउ डिडक्ट दीज टू आइटम्स फ्रॉम द 4,20,000. आप 4,20,000 में से ये 70 प्लस 20 90,000 आप डिडक्ट कर देंगे, तो 3,30,000. ये बैलेंसिंग फिगर, जो ये बैलेंसिंग फिगर आपने कैलकुलेट किया, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल. कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ पे करेंगे, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, अगर आपके पास अब क्लोजिंग कैपिटल आ गई, अब आप कैलकुलेट करेंगे इसका प्रॉफिट. फर्स्ट आपके पास जो आइटम होती है वो क्या है, कैपिटल एट द एंड. ये आइटम यहां से लेनी है 3,30,000. ये भी आप बना रहे हो 31 मार्च 2017. डेट आपका गिवन है तो आपने मेंशन करना है. ओके, देन ऐड करनी है ड्राइंग्स. तो इन दिस क्वेश्चन ड्राइंग्स आल्सो गिवन है 15,000. ऐड कर दो 3,45,000. डिडक्ट करेंगे एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल है 40,000. डिडक्ट कर देंगे 3,05,000. Okay, then let's करेंगे capital at the beginning. This item also given in your question. You can say given after the 3 lakh. Amount जो last में आया है वो है 5,000. Positive है, so that's why this is the profit. Profit made during the year. ये आपने कैलकुलेट किया है. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रिपेयर किया, आफ्टर देन आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना है. कैलकुलेट द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं स्टूडेंट्स. तो यू विल सॉल्व फर्स्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज एंड यू विल प्रैक्टिसाइज illustration number 1 and 2 in your practice notebook. Okay students, thank you students, have a nice day.